آپ کو دیکھ کر اچھا لگا. خدا آپ کو برکت دیں. آج آئیں ہم کچھ وقت اکٹھے خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے میں گزارتے ہیں. میں خدا کے کلام کو واعظ کے عنوان ایمان کی دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے کے تحت بانٹنا چاہوں گا. جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب مقدس میں بہت سی شخصیات ہیں. جب بھی ہم کتاب مقدس میں ان لوگوں کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات پر توجہ نہیں دینی چاہیے کہ انسان نے کیا حاصل کیا ہے، بلکہ ہمیں یہ معلوم کرنے کے قابل ہونا چاہیے کہ خدا نے کیا کیا ہے اور اس پر توجہ دینی چاہیے. خدا نے جو کچھ کیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے جو انسان نے کیا ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ کتاب مقدس میں کئی شخصیات کی تاریخ درج ہے، جیسے کہ ابراہم اور نوح. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم ان لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں. تاہم اس بات پر توجہ دینے کے بجائے کہ انہوں نے کیا حاصل کیا تھا، ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ کس طرح خدا نے ہر زمانہ میں بنے نوع انسان کی رہنمائی نجات کی طرف کی ہے. تب ہم یقیناً آج کے واعظ کے عنوان کی تصدیق کرنے کے قابل ہوں گے کہ ایمان کی دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. یشوع نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ نے کیا حاصل کیا تھا؟ بے شک ان کے سب کام اہم ہیں. یشوع کا کام، موسیٰ کا کام اور جدعون کا کام سب اہم ہیں. تاہم خدا نے ہر زمانے اور ہر واقعے میں جو کچھ کیا وہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ انسان نے کیا کیا تھا. خدا نے ان تمام واقعات کے ذریعے کیسے بنے نوع انسان کی رہنمائی نجات کی طرف کی تھی. انہوں نے کیسے بنے نوع انسان کو سزا دی جو گمراہ ہو رہے تھے. انہوں نے کیسے راہ کھولی اور ان کی درست راہ کی طرف رہنمائی کی تھی. اگر ہم اس سوال پر توجہ کرتے ہوئے کتاب مقدس پڑھیں کہ خدا نے کیا کیا ہے تو ہم اس حقیقت کو سمجھنے کے قابل ہوں گے کہ ایمان کی دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. بہت سے لوگ اکثر خدا کے کام کی بجائے انسانوں کے کام پر توجہ دیتے ہیں. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ پولس رسول نے یہ کیا تھا، پطرس رسول نے یہ کیا تھا، یوحنا رسول نے یہ کیا تھا. ان کے کام کتاب مقدس میں لکھے ہیں. تاہم ہمیں اس پر توجہ مرکوز نہیں کرنی چاہیے کہ انسان نے کیا کیا ہے. ہمیں اس بات پر گہری توجہ دینی چاہیے کہ خدا نے ہر زمانہ میں ہماری نجات کے لیے کیا کیا ہے. جب ہم ایسا کریں تو ہم غیر متزلزل ایمان رکھیں گے اور ایمان میں پختہ رہیں گے. آج اس امر کے متعلق آئیں ہم خدا کے کلام کو واعظ کے عنوان ایمان کی دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے کے تحت بانٹتے ہیں. ہم رومیو کی کتاب باب 14 آیت 23 دیکھتے ہیں. رومیو باب 14 آیت 23 میں یہ کہا گیا ہے کہ مگر جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے، اس واسطے کہ وہ اعتقاد سے نہیں کھاتا، اور جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے. آپ سب ہمیں ہر بات میں اعتقاد رکھنے کی ضرورت ہے. جب ہمارے دل کا مرکز انسان ہو تو ہم ہرگز خدا پر اعتقاد نہیں رکھ سکتے. جب خدا ہمارے ایمان کا مرکز بن جاتے ہیں تو ہم اس دنیا کا تجربہ کر سکتے ہیں جہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ہمیں خدا کے کاموں پر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ انسان کے کاموں پر. مجھے امید ہے کہ آج ہم اس امر کے بارے میں سیکھنے کے قابل ہوں گے. ہم لوکا کی کتاب باب 17 آیت 17 سے دیکھتے ہیں. لوکا کی کتاب باب 17 آیت 17. یسوع نے جواب میں کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ پھر اس سے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے. کتاب مقدس کے ایک اور ترجمے میں یہ کہا گیا ہے کہ تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے. یسوع نے کہا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے. ہم مرکز کی کتاب کے 9ویں باب کی طرف جاتے ہیں. مرکز کی کتاب باب 9 آیت 23. یسوع نے اس سے کہا، کیا اگر تو کر سکتا ہے، جو اعتقاد رکھتا ہے وہ جس میں ایمان ہو اس کے لیے، کیا اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے.
हमें ये सोचते हुए किताब मुक़द्दस नहीं पढ़नी चाहिए कि इंसान ने क्या किया था। ऐसा नुक्ता नजर रखने की बजाय हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि ज्यादा अहम क्या है। हर जमाना में खुदा ने बनी नूह इंसान के लिए क्या किया, इसका क्या मतलब है। अगर तू कर सकता है, जो इत्काद रखता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। ये किसने कहा था? ये खुदा ने कहा था। जब हम ईमान नहीं रखते तो हमारे इर्द गिर्द के तमाम हालात और चीजें इस तरह से तरतीब दी जाती हैं कि सब कुछ नामुमकिन लगता है। ताहम जब हम ईमान रखते हैं तो हमारे इर्द गिर्द हर चीज बदल जाती है। खुदा ने हर जमाना में अपना काम कैसे अंजाम दिया है, मेहरबानी से इस मामले पर गहराई से गौर करें। ईमान रखने वालों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। किसने इसे यूं बनाया था? खुदा ने पेशतर ही इसे यूं बनाया था। चूंकि हम इस तीन सिमत दुनिया में रहने के आदी हैं, इसलिए हम अपनी जिंदगी ऐसे ख्यालात पर इन्हिसार करते हुए गुजार रहे हैं जो हम इस दुनिया में समझ सकते और महसूस कर सकते हैं। ताहम अगर इस दुनिया में कुछ भी नहीं बदलता है, तो जब हम अपना ईमान तब्दील करें तो हमारे इर्द गिर्द की हर चीज बदल जाएगी। खुदा ने इस दुनिया को इस तरह से चलाने के लिए तख्लीक किया था। खुदा 2000 साल पहले इस जमीन पर आए और उस जमाना के लोगों को यह एहसास दिलाया कि ईमान रखने वालों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो फिर क्या ये सिर्फ उन लोगों पर आयद होता है जो 2000 साल पहले रहते थे? नहीं, इस जमाना में भी ऐसा ही है। ईमान रखने वालों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। खुदा ने पेशतर ही इस तरह से सब चीजें पैदा की थी। हम बाब 9 आयत 24 से जारी रखते हैं। उस लड़के के बाप ने फिल फोर चिल्लाकर कहा, मैं इत्काद रखता हूं, तू मेरी बेइत्कादी का इलाज कर। आयत 25, जब यसु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं, तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, ऐ गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूं, इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया। ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया। मगर यसु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा कि ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती। हमें संजीदगी से खुदा से दुआ करनी चाहिए, और जब आप दुआ करें तो पुख्ता ईमान से करें। ऐसा करने से हम मसीह का वादा हासिल करने के काबिल होंगे, जो कहते हैं कि ईमान रखने वालों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। खुदा ने कहा, अगर तू कर सकता है, इसका क्या मतलब है? जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। आज मुझे उम्मीद है कि हम खुदा के बख्शे इन अल्फाज को अपने दिलों पर गहराई से कंधा करने के काबिल होंगे। हम लूका की किताब बाब 18 की तरफ जाते हैं। लूका बाब 18 आयत 25 में यसु ने कहा, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन निजात पा सकता है? उसने कहा, जो इंसान से नहीं हो सकता वो किससे हो सकता है? खुदा से हो सकता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इंसान के लिए नामुमकिन हैं। इंसान इस दुनिया को अपने मंसूबों या ख्वाहिशों के मुताबिक बदल नहीं सकते हैं। इस जमीन पर कोई भी ऐसी कुव्वत नहीं रखता है जो अपनी मौजूदा सूरत हाल को ज्यादा साजगार हालात में बदले। ताहम 3 सिमती जहान, 4 सिमती जहान और 5 सिमती जहान को पैदा करने वाले खुदा हर चीज को तरतीब देते और इसे चलाते हैं। लिहाजा किताब मुक़द्दस हमें सिखाती है कि जो इंसान के लिए नामुमकिन है वो खुदा के लिए मुमकिन है, जो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी तमाम फिक्रों, खौफ, परेशानियों और उलझनों को तर्क कर देना चाहिए। अगर खुदा हमें कुछ करने को कहते हैं तो हमें सयून के फर्जंदों के तौर पर क्या करना चाहिए? हमें खुदा पर ईमान रखना
اور ان کے کلام کی فرما برداری کرنی چاہیے. ہمیں اس راہ پر چلنا چاہیے جس پر وہ ہمیں لے جائیں. ہم جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اگر اس میں مشغول رہیں تو ہم پریشان ہو کر اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ کیا یریحو جیسا بڑا شہر گر سکتا ہے؟ جب صرف 5 جو کی روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہوں تو کیسے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے؟ یہ تصورات انسان کے زمرے میں ہیں. تاہم خدا کے زمرے میں کیا ہوا تھا؟ خدا نے 5000 لوگوں کو جو کہ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے کھانا کھلایا اور حتیٰ کہ بچے ہوئے ٹکڑوں سے 12 ٹکڑیاں بھر گئی تھیں. یہ خدا تھے جنہوں نے اسے ممکن بنایا تھا. خدا نے یہ تمام تعلیمات کتاب مقدس میں رکھی ہیں جس پر آپ اور میں ایمان رکھتے ہیں. لہٰذا خوشخبری کی اس راہ پر چلتے ہوئے ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہر زمانہ میں خدا نے بنی نوع انسان اور ہماری نجات کے لیے کیا کیا ہے؟ پطرس اور پولس رسول کیوں ظاہر ہوئے تھے؟ کیوں کتاب مقدس میں یریحو کو فتح کرنے کی تاریخ درج ہے؟ خدا اپنے لوگوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں جو آج ایسی تاریخ کے ذریعے زندگی گزار رہے ہیں؟ ہر زمانے میں خدا کیا کرتے رہے ہیں؟ ہمیں واضح طور پر اسے یاد رکھنا چاہیے. کیوں خدا نے بحر کلزم کو خشک زمین کے طور پر 2 حصے کر دیا تھا تاکہ تمام اسرائیلی بحر کلزم کو عبور کر سکیں؟ کیوں یریحو کا مضبوط قلعہ بغیر کسی جسمانی طاقت کے گرا تھا؟ کیا یہ سب کام انسانوں کے تھے یا خدا کے؟ ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایمان کی دنیا میں تبدیل کرتے رہنا چاہیے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس یا اس وجہ سے کچھ کرنا مشکل ہے تو ایسے خیالات سے ہم خوف، پریشانی اور ہچکچاہٹ محسوس کریں گے. جب خدا ہمیں کچھ کرنے کو کہتے ہیں تو ہمیں اس ایمان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ یہ یقیناً پورا ہوگا. اگر ہم کسی شک کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو ہم پطرس کی طرح سمندر میں ڈوب جائیں گے. جب یسوع پانی پر چل رہے تھے تو پطرس نے کہا، اے خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. یسوع نے جواب دیا، آ. تاہم جب اس نے سردی اور لہریں محسوس کی تو اسے طبعی چیزیں نظر آنے لگی. جسمانی حواس، طبعی ماحول اور وہ دنیا جس کا اس نے پہلے تجربہ کیا تھا اسے نظر آنے لگے. پہلے تو پطرس خوفزدہ ہو گیا جب اس نے یسوع کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھا، لیکن اس نے سوچا یسوع کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے. پطرس نے پوچھا، اے خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. یسوع نے جواب دیا، آ. اور پطرس کے لیے ہر چیز کو ممکن بنایا کہ وہ پانی پر چل سکے. تاہم جب پطرس نے لہروں اور ٹھنڈے پانی کو اپنی انگلیوں پر بہتا ہوا محسوس کیا تو اس نے مادی دنیا پر زیادہ توجہ دینا شروع کر دی. ایک بار جب اس نے مادی دنیا کا ادراک کرنا شروع کیا تو ایمان کی دنیا میں کیا ہوا تھا؟ وہ ناگزیر طور پر گر گیا تھا. اگرچہ یسوع نے ہر چیز کو ممکن بنایا تھا پر پطرس کا بے ایمان اور مشکوک دل مادی دنیا کے ساتھ مل گیا تھا جس کی باعث وہ پانی میں ڈوبنے لگا. پطرس نے چلا کر کہا، اے خداوند مجھے بچا، براہ کرم مجھے بچا. یسوع نے اسے کس طرح قصوروار ٹھہرایا؟ یسوع نے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اگر ہم شک کریں تو ایمان کی دنیا تباہ ہو جائے گی. خدا اپنے کردار اور تخلیق کردہ اچھے حالات کو مکمل طور پر اس وقت انجام دیتے ہیں جب وہ ایمان کی دنیا کے ساتھ ہوتے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایمان کی دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. تاہم ایمان کے بغیر دنیا میں ہر چیز رکاوٹ اور مشکل بن جاتی ہے اور یہ ہمارے دلوں کو بے چین کر دیتی ہے. آخر کار اچھے نتائج کے بجائے منفی نتائج حاصل ہوتے ہیں. ہم کتاب مقدس میں درج اباء اجداد کی تاریخ سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. ہم جداون کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ہم قضات باب 7 آیت 1 کھولتے ہیں. ہم پرانے عہد نامہ میں قضات کی کتاب باب 7 آیت 1 سے دیکھتے ہیں.
तब यरूबाल यानी जिदौन और सब लोग जो उसके साथ थे सवेरे ही उठे और हरोद के चश्मा के पास डेरा किया, और मिद्यानियों की लश्करगाह उनके शुमार की तरफ कोहे मोरा के मुत्सिल वादी में थी। तब खुदावंद ने जिदौन से कहा, तेरे साथ के लोग इतने ज्यादा हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि इस्राएली मेरे सामने अपने ऊपर फख्र करके कहने लगें कि हमारे हाथ ने हमको बचाया। सो तू अब लोगों में सुना सुनाकर मुनादी कर दे कि जो कोई तरसान और हिरासान हो वो लौटकर चला जाए। क्या ईमान की कमी से खौफ और बेचैनी का एहसास पैदा नहीं होता है? चूंकि वो ईमान की दुनिया में नहीं थे तो वो इस बात का यकीन नहीं कर सके कि उस वक्त खुदा उनकी मदद कर रहे थे। इसके अलावा जब उन्होंने अपना मुआजना अपने दुश्मनों के साथ किया तो उनके दुश्मनों के पास ज्यादा हथियार, ज्यादा सिपाही और बेहतर असला था। उनके दुश्मन उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर दिखाई देते थे, इसलिए वो खौफ से कांपने लगे। उस वक्त खुदा ने उन सबको वापस जाने को कहा जो खौफ से कांप रहे थे, क्योंकि उनमें ईमान नहीं था। हमारी खुशखबरी के साथ भी ऐसा ही है। यह खुशखबरी मरकज के बालाखाना से शुरू हुई थी, मगर नबुवत के मुताबिक इसकी मुनादी अब सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक की जा रही है। हमें बगैर किसी खौफ के इस खुशखबरी को अंजाम देना चाहिए। जब हम इस दुनिया के माहौल को देखते हुए खौफ से कांपने लगे तो खुदा हमें खुशखबरी के काम से खारिज कर देंगे। चूंकि खौफ से कांपने वाले अजीम रूहानी जंग में शरीक नहीं हो सकते, इसलिए खुदा उन्हें छोड़ने और वापस लौट जाने का हुक्म देते हैं। वो लौटकर कोहे जिलाद से चला जाए। चुनाचे उन लोगों में से 22,000 तो लौट गए और 10,000 बाकी रह गए। तकरीबन 2/3 मर्द वापस चले गए थे, उनमें से सिर्फ 1/3 बाकी रह गए। ताहम जो खुदा के काम को अंजाम दे सकते थे, खुदा ने उन्हें मुंतखब करने के लिए एक और इम्तिहान दिया था। आयत 4, तब खुदावंद ने जिदौन से कहा कि लोग अब भी ज्यादा हैं, सो तू उनको चश्मा के पास नीचे ले आ और वहां मैं तेरी खातिर दोबारा उनको आजमाऊंगा। खा खुदा की खुशखबरी अंजाम देने का काम हो, जिस्मानी काम हो या रूहानी काम हो, खुदा उन लोगों को चुनते हैं जो खुदा पर ईमान रखते हैं। ये पुराने अहदनामा के जमाना की तरह नए अहदनामा के जमाना और रुल कुद्स के जमाना में भी ऐसा ही है। इसकी वजह यह है कि बाप के जमाने का खुदा बेटे के जमाने का खुदा था। वो वही खुदा थे जिन्होंने बेटे के जमाने में निजात के काम की क़यादत की थी। जब खुदा उन्हें आजमाने के लिए चश्मा के पास ले गए तो सिर्फ 300 सिपाही बाकी रह गए थे और बाकी सबको वापस भेज दिया था। आजमाए जाने के बाद चुने हुए जिदौन के सिपाहियों ने मिद्यानियों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी और बनी इसराइल को बचाया जो मिद्यानियों की गुलामी में थे। हम किताब मुक़द्दस में तारीख के जरिए ऐसे हैरत अंगेज काम देख सकते हैं। आप सब इस जमाना में ईमान की जरूरत है, चाहे ये बाप का जमाना हो, बेटे का जमाना हो या रुल कुद्स का जमाना हो। जब हम ईमान रखें तो हमारे इर्द गिर्द की दुनिया बदल जाएगी। जब हम ईमान रखें तो हमारे आसपास का माहौल भी बदल जाएगा। सब कुछ खुदा के कलाम के मुताबिक पूरा होता है। इसलिए खुदा के कलाम को पूरा करने के अमल में हमें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए कि हम इसमें और उसमें कम हैं। हमें इस बात पर गौर नहीं करना चाहिए कि हमें क्या कमी है, बल्कि हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि इस वक्त हमारे साथ कौन है। खुदा के फजल से पूरी दुनिया में खुशखबरी का काम तेजी से हो रहा है। बाज लोग सोचते हैं कि मैंने अपने आसपास के लोगों को सच्चाई की मुनादी के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, ताहम ये सिर्फ हमारे ख्यालात हैं। खुदा की नजर में एक शख्स 10 साल पहले खुशखबरी को कबूल करता है और बे शख्स उस वक्त खुशखबरी को मुस्तरद कर देता है, और अब उसके लिए खुशखबरी को कबूल करने का सही वक्त है। इस वजह से खुदा ने हमें वक्त बे वक्त क्या करने का हुक्म दिया है?
क्या वो हमें हमेशा खुशखबरी की मुनादी करने के लिए नहीं कहते हैं? जिदाउन का काम, यशवा का काम और बहरे कुलजम को 2 हिस्से करने के काम में क्या चीज मुश्तरक थी? उन कामों में मुश्तरक चीज ये थी कि वो सब काम जिस्मानी आंखों को नामुमकिन लग रहे थे, कुछ भी मुमकिन नहीं था। ताहम खुदा ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया था। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि नौजवान दाऊद जाती जूलियत को शिकस्त देगा। जिस्मानी नुक्ता नजर से ये एक ऐसी लड़ाई थी जो जीती नहीं जा सकती थी। ताहम खुदा ने दाऊद को फतह बख्शी जो ईमान से लड़ रहा था। खुदा ने जिदाउन के सिपाहियों को भी फतह बख्शी जो ईमान से लड़े थे। मूसा और बनी इसराइल जो ईमान से आगे बढ़े थे, खुदा ने बहरे कुलजम को 2 हिस्से किया और उनके लिए रास्ता खोला था। यशवा और इसराइलियों के लिए जो ईमान से आगे बढ़े थे, खुदा ने यरीहो की दीवारों को गिरने दिया, हालांकि उन्होंने दीवारों पर कोई जिस्मानी ताकत नहीं लगाई थी। ईमान की दुनिया में ये सब काम खुदा के जरिए पूरे हुए। खुदा ने हमें सामरिया और जमीन के इंतहा तक तमाम बनेनो इंसान को खुशखबरी की मुनादी करने के लिए कहा है। इस खास काम को अंजाम देने के लिए हम खुशखबरी के मुल्क और खुशखबरी के इलाके की दर्जा बंदी करते हैं और कलीसियाओं की तादाद और कारकुनों की तादाद का हिसाब लगाते हैं जिनकी जरूरत है। कम अज कम तैयारी के बावजूद इस खास काम को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा काम की जरूरत है। ताहम खुदा कहते हैं कि किसी चीज से ना डरो। क्या मैं हमेशा तेरे साथ नहीं हूं? खुदा हमें हमेशा इस बात का यकीन दिलाते हैं। जब जिदाउन ने खुदा से पूछा कि वो बहुत ज्यादा हैं और हम बहुत कम हैं, हमें क्या करना चाहिए? हम खौफजदा हैं। तो खुदा ने कहा था कि मत डर, क्या मैं हमेशा तेरे साथ नहीं हूं? आप सब जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो कुछ नहीं है। ईमान की दुनिया में ये अफसाने और फरेब की तरह है। जब खुदा हमें कुछ करने को कहते हैं तो वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये हो सकता है। वो हमें कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कहते जो हम नहीं कर सकते। खुदा ने यरीहो फतह करने के लिए यशवा को भेजा क्योंकि खुदा ने पेशतर यरीहो को फतह करने के लिए तमाम तैयारियां कर रखी थीं। क्या उन्होंने जिदाउन के सिपाहियों को भी जंग में जाने के लिए नहीं कहा था क्योंकि उन्होंने मिद्यानी को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने के लिए तमाम तैयारियां कर ली थीं? जब खुदा इसराइलियों को मिस्र से निकाल लाए और उन्हें दूध और शहद बहने वाले मुल्क कनान में दाखिल होने का हुक्म दिया, तो दूसरी अकवाम की तरफ से उन्हें बहुत सी रुकावटें और मुश्किलात पेश आईं। इसके बावजूद जब खुदा ने उन्हें जाने को कहा तो खुदा ने पेशतर ही उनके मुल्क में दाखिल होने के लिए तमाम तैयारियां कर रखी थीं। वहां ऐसा कुछ नहीं था जो ना किया जा सके। हमें किताब मुक़द्दस के नबूवती असबाग के जरिए ये तालीम सीखनी चाहिए। हम मत्ती बाब 28 की तरफ जाते हैं। अगरचे बहरे कुलजम को 2 हिस्से करना, यरीहो को फतह करना, क्या मिद्यानी फौज को शिकस्त देना नामुमकिन लगता था, लेकिन खुदा ने हर चीज को मुमकिन बनाया। हम मत्ती बाब 28 आयत 18 की तरफ जाते हैं। बाब 28 आयत 18 में यह कहा गया है कि यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस यीशु ने उन्हें क्या करने को कहा था? उन्होंने उन्हें जाने को कहा, तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब हम खुशखबरी की मुनादी करते हैं तो अगर हम सिर्फ लोगों की तादाद या इंसानों की हिकमत और सलाहियतों पर तवज्जो दें तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ जब हम हमेशा खुदा पर तवज्जो मरकूज करें और इस बात पर ध्यान दें कि खुदा ने बाप के जमाना, बेटे के जमाना में क्या किया और रुल कुद्स के जमाना में क्या कर रहे हैं, तो सब कुछ मुमकिन है। जो हमें ताकत बख्शता है उसमें हम क्या कर सकते हैं? ये लिखा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं।
खुदा हमारे लिए हर चीज को मुमकिन बनाते हैं, ताहम इसे क्या नामुमकिन बनाता है? ये क्या है? हमारी आंखें जो इस दुनिया पर गौर करती हैं और हमें बख्शे गए खुदा के वादों पर शकूक, ये हमारे अंदर रुकावटें पैदा कर रहे हैं और मुमकिन को नामुमकिन में बदल रहे हैं। आप सब, हमें इन तमाम रुकावटों को दूर करना चाहिए। खुदा हमें क्या करने को कहते हैं? बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। अगर हम शक करें तो हम भी पतरस की तरह समुद्र में डूब जाएंगे। अगर हम ईमान रखें तो हम जिदाउन की मानद फतह याब होंगे और यशवा की मानद फतह के जलाल का लुत्फ उठाएंगे। खुदा हमारे लिए वैसे ही रास्ता बनाएंगे जैसे उन्होंने मूसा के लिए बनाया था। अगर किसी के भी लाठी मारने से बहरे कुलजम तकसीम हो जाता तो बात लोग शायद सोचते कि ये बहुत आम चीज है। अगर हम खुदा पर ईमान ना भी रखें तो ऐसा हो सकता है, ताहम वो ऐसा मामला नहीं था। जब खुदा ने कहा कि तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और इसे 2 हिस्से कर, तो ये नाकाबिले यकीन था। ताहम किसने नामुमकिन को मुमकिन बनाया था? ये सब काम खुदा की वजह से मुमकिन हुए थे। जब हम इन तमाम कामों के बारे में सोचें तो हम यशायाह की किताब में लिखे गए अल्फाज को याद रखें। तुम मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हिरासा ना हो, क्या मैं तेरा खुदा नहीं हूं? हम खुदा के कलाम को नजरअंदाज ना करें जो हमें लामतनाही तौर पर दिया जाता है, या अपने आसपास के लोगों की तरफ ना देखें। हमें खुशखबरी की मुनादी करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए, ये सोचते हुए कि वो एक खौफनाक शख्स की तरह लगता है, वो बहुत बूढ़ा है, वो मेरी निस्बत आला मकाम पर है, वो मुझसे बेहतर है। ऐसे ख्यालात रखने के बजाय हमें जाकर दुनिया के सब लोगों को खुशखबरी की मुनादी करनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने हमें हर एक को खुशखबरी की मुनादी करने का हुक्म दिया है। इसलिए अगर हम मुस्तदिल से खुशखबरी की मुनादी करें तो वो यकीनन तौबा करेंगे। क्या आप सोचते हैं कि यूना के पास 1,20,000 लोगों को तौबा की तरफ ले जाने की कुव्वत थी? यूना सिर्फ वहां गया और बिल्कुल वैसे ही मुनादी की जैसे खुदा ने उसे हुक्म दिया था। क्या हुआ था जब यूना ने उनको मुनादी की? नीनवा के सब लोगों ने तौबा की थी। वो खुदा के कलाम को पहुंचाने में कोई खास महारत या कुव्वत नहीं लाया था। उसने मुस्तैदी से सिर्फ वो पहुंचाया जो खुदा ने उसे कहने का हुक्म दिया था। ताहम वहां तौबा का काम वकूम में आया। लिहाजा इस आलमी गांव में तमाम बने इंसान के दरमियान तौबा का अजीम काम अंजाम देने के लिए हमें बाहर निकलकर खुदा के कलाम की मुनादी करनी चाहिए। ये सोचने के बजाय कि किसने कितना काम किया है, हम इस बात पर तवज्जो दें कि खुदा ने क्या करने का मंसूबा बनाया है और वो इस जमाना में बने इंसान के लिए क्या काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सयून के तमाम खानदानी अराकीन खुशखबरी के खूबसूरत अज़म के साथ मुस्तैदी से दौड़ेंगे कि हम इस साल खुदा को कबूल करेंगे। इसके साथ मैं आज का वाज खत्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।